Hello students, today we are going to start third unit, electrochemistry. In this part we will discuss about electrochemical cell and introduction of electrolytic cell. Outline of this chapter is introduction, then what do we mean by electrochemistry, then what do we mean by electrochemical cells, parts of electrochemical cells, notation of electrochemical cells and electrolytic cells, and some references for you. First of all, why we want to study about electrochemistry? It is very, very important for us because many devices that we are using in our daily life are using battery. हम लोगों के डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि बैटरी को यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, जो वॉच है, घड़ी है, लैपटॉप्स, व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर, कार, motorcycle. Maximum devices are using batteries. So we are interested to study about electrochemistry, which is important part of the electrochemistry. Then we need to study a big issue, that is corrosion, which is electrochemical phenomenon. Due to that, we are getting huge amount of loss in our life. Then we need to study about many chemicals and elements such as chlorine, sodium hydroxide and aluminum, etc., which are produced electrolytically. Then you can see that batteries are widely used in our daily life. This is a truck which is also running with the help of battery only. So we need to discuss in detail about these batteries and about electrochemistry. Then first point is, what do we mean by electrochemistry? So electrochemistry is branch of the chemistry in which we study about the interconversion between chemical energy and electrical energy. यह केमिस्ट्री का एक बहुत ही वाइड ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में इंटरकन्वर्जन को पढ़ते हैं कि दोनों में इंटरकन्वर्जन कैसे होता है. सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. In electrochemistry, we need to discuss about two cells in detail, that is electrochemical cell and electrolytic cell. So first we are going to discuss about electrochemical cell. For example, we are going to take one electrochemical cell here. Here two separate vessels are there or containers are there in which separate plates of the metals are introduced and they are connected with a salt bridge. They are connected with a salt bridge. In this case, you see here that two plates are there. One is zinc plate and another one is copper plate. Copper plate is dipped into copper sulfate solution and zinc plate is dipped into the zinc sulfate solution. Now what is happening here on the zinc plate, that it is losing 2 electrons and zinc is going into zinc plus 2 ion and that is dissolving in the solution. तो टाइम के साथ यहाँ क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं जैसा रिएक्शन से कि जिंक किसमें जा रहा है, जिंक प्लस 2 में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है. तो समय के साथ जिंक प्लेट से धीरे धीरे जिंक कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है. इसी तरह क्या हो रहा है यहाँ पर कॉपर पर, क्या हो रहा है यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो कॉपर प्लस 2 आयन है वो कॉपर प्लस 2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये इलेक्ट्रॉन लिया कहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो इस प्लेट के थ्रू मूव करते हुए इधर आ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या दे दिए, कॉपर सॉलिड. तो यहाँ इस सेल में देखिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज जैसा डायग्राम से ही आपको दिखा रहा है कि यहाँ इधर से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट से जब कॉपर प्लस 2 इधर गया तो सल्फेट आयन एक्सेस हो रहा है, तो ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू आयन इधर आ रहा है. इसी तरह जिंक प्लस 2 यहाँ सॉल्यूशन में बढ़ रहा है तो जिंक प्लस 2 इधर सॉल्ट ब्रिज में इंटर कर रहा है. तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इस सर्किट को कंप्लीट करना तथा साथ में क्या करना, आयंस का एक्सचेंज करना. और इस तरह से सर्किट कंप्लीट होता है तो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से बल्ब यहाँ ग्लो करता है. तो दिस इज ए मॉडल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नाउ सी, it is a device which produces electrical current और इलेक्ट्रिक करंट बाय मींस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ होता क्या है, जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है
उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने यहाँ कौन सा रिएक्शन है, जैसे जिंक जिंक प्लस 2 में गया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन इधर सर्किट से होते हुए आया और इस प्लेट पर जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला गया, कॉपर सॉलिड में चला गया। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये हो रहा है कॉपर और जिंक के बीच में, और इस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड हियर। This is also known as galvanic cell or voltaic cell or electrochemical cell. These are different names of the electrochemical cells. It consists of 2 half cells with 1 इलेक्ट्रोड ईच। जैसे हमने बताया 2 ये हाफ सेल हो गया, एक हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल हो गया। इसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड डिप्ट होते हैं जो वायर से कनेक्टेड होते हैं। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। जैसे यहाँ जिंक क्या है, जिंक प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज एनोड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से क्या हो रहा है, इस पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कैसा बिहेव करेगा, प्लस या माइनस। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा यहाँ पर तो ये कैसा बिहेव करेगा, माइनस जैसा बिहेव करेगा। सो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड ऑन एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। नाउ रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। ये जो कॉपर प्लेट है कैथोड का काम कर रहा है। जैसा आप देखिए कॉपर प्लस 2 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो गया, कॉपर सॉलिड में गया, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन एंड दैट अकर्स एट कैथोड। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एनोड पर हो रहा है, दैट इज जिंक प्लेट। नाउ पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पार्ट क्या क्या है तो देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। Each half cell consists of a container of an aqueous solution and an electrode or surface at which electron transfer takes place. यहाँ पर होता क्या है, each half cell consists of container, जिसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है हर हाफ सेल में और उसमें सॉल्यूशन होता है और उसमें एक एक क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है और इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इसके साथ साथ ये वायर कनेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि अभी हमने डायग्राम में आपको दिखाया। इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस टू कैथोड दैट इज रेड्यूस्ड सब्सटेंस। कहां से इलेक्ट्रॉन, आपने अभी भी देखा जिंक प्लेट दैट इज एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और वही कहां जाता है, फिर कैथोड की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर निकला वो कैथोड की तरफ मूव कर जाता है। And they are connected with, these 2 solutions are connected with salt bridge which completes the circuit and separates 2 half cell reactions. ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन को क्या करता है, सेपरेट करता है और ये सेल रिएक्शन को क्या करता है, सेल को कंप्लीट करता है। और साथ साथ सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ आयंस थ्रू इट। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि सॉल्ट ब्रिज पहला काम क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है जिससे कि आपको करंट फ्लो करता है। इसके साथ साथ दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ आयंस थ्रू इट। नाउ नोटेशन ऑफ द electrochemical cell, how to represent the electrochemical cell. Now see here, anodic and cathodic half cells are separated together with salt bridge or they are connected with salt bridge. So for salt bridge we put double slash, मतलब 2 लाइन हम लोग पुट कर देते हैं किसके लिए, सॉल्ट ब्रिज के लिए। और जो यहाँ मेटल प्लेट है, जिंक रॉड है और ये जिंक सॉल्यूशन का जिंक प्लस 2 है, ये दोनों आपस में सेपरेट किससे हैं, जिंक मेटल के सरफेस को हम लोग किससे दिखाते हैं, ये फेज बाउंडेड मतलब मेटल सरफेस दिखा दिए, ये हो गया सिंगल लाइन से। तो जिंक सॉलिड से एनोड पर क्या बना, जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक प्लस 2 में जाता है। तो हमने एनोडिक हाफ सेल को पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में किसको दिखाते हैं, कैथोडिक हाफ सेल को। पहला पॉइंट, एनोडिक हाफ सेल को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और कैथोडिक हाफ सेल को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और एनोडिक और कैथोडिक को हम डबल स्लैश मतलब सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट करके डबल लाइन से दिखाते हैं। इसके बाद जो एनोड है जिंक से क्या बन रहा है, जिंक प्लस 2 और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो इसको हम लोग सिंगल लाइन से सेपरेट करते हैं, इसे फेज बाउंड्री कहते हैं। और कैथोड पर क्या होता है, कॉपर प्लस 2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होता है
और हम लोग सिंगल लाइन को क्या कहते हैं, फेज बाउंड्री कहते हैं। और जैसा आपने देखा जिंक रॉड से कहा जा रहा है, जिंक रॉड से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कॉपर रॉड की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हुआ, इधर से इधर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू दिस टू। So this is representation of the electrochemical cell. एनोडिक हाफ सेल को पहले लिखते हैं, कैथोडिक हाफ सेल को राइट हैंड साइड में लिखते हैं, इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Electrolytic cells are just opposite to electrochemical cells. For example, in electrolytic cells, we are producing electric current with the help of chemical reactions, or that is spontaneous chemical reactions. But in the case of electrolytic cells, we are using electric current for the carrying out of the non-spontaneous chemical reactions. So this is just reverse of the electrochemical cell. So this is a device which brings about a chemical change by means of electric current supplied. In this cell, 2 electrodes are dipped in the same container. In electrochemical cell, both plates are, or anode and cathode are dipped separately in different solutions. But here we are dipping both electrodes in the same container and in the same solution. Electricity from outside source supplies electrons for the non-spontaneous chemical reactions, so that we can perform the non-spontaneous chemical reactions. Reduction takes place at cathode, where metal from electrolytic solution gets deposited. और यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन जो कैथोड है उसी पर होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी क्या होता है, रिडक्शन वही होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी रिडक्शन कैथोड पर ही होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपको मेटल डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन एनोड फ्रॉम वेयर मेटल गोज इनटू द सॉल्यूशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एनोड पर ही होता है, लेकिन मेटल कहाँ जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में धीरे धीरे डिजोल्व होते जाता है। नाउ यू सी हियर दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चार्जेस ऑन द प्लेट्स आर जस्ट रिवर्स्ड। यहाँ पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपैरिजन में यहाँ जस्ट रिवर्स हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, एनोड निगेटिवली चार्ज था और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन यहाँ क्या होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और कैथोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। Now see the differences between the electrochemical cell and electrolytic cells. These are very, very important for the CBSE board exams as well as competitive exams too. But for the CBSE board exam, this is very, very fabulous question. So see here, electrochemical cell, it converts chemical energy into electrical energy. ये spontaneous chemical energy जो है उसको किस में convert करता है, electrical energy. But electrolytic cell क्या करता है, electrolytic cells uses electric current or electrical energy for carrying out non-spontaneous chemical reactions, or we can say it converts electrical energy into chemical energy, ऐसे कह सकते हैं। It is based upon the redox reactions which are spontaneous. यहाँ spontaneous reactions का chemical energy use होता है, but in this case the redox reactions are non-spontaneous and takes place only when energy is supplied. ये non-spontaneous केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करता है और ये तभी होता है जब हम एनर्जी सप्लाई करें। द केमिकल चेंजेस अकरिंग इन द टू बीकर्स आर डिफरेंट। यहाँ जो दोनों बीकर में रिएक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग आपको कंपाउंड को कंज्यूम करते हैं या रिएक्शन करते हैं अलग अलग कंपाउंड से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओनली वन केमिकल कंपाउंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन। सिर्फ यहाँ एक ही कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है और रिडक्शन होता है। यहाँ देखिए एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, सेम होता है, लेकिन चार्ज क्या है, एनोड ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया और कैथोड निगेटिव हो गया। So this is very, very important question for the board exams because this is generally asked in 2 and 3 marks questions. So you should take care about this one. So some references for your study. You can go on these references and you can read in more detail. Then summary, today we discussed about electrochemistry, electrochemical cells, and structure and components of electrochemical cells, electrolytic cell. So this much for today. Thank you.